Brothers and sisters, I'm so pleased to be here on this very auspicious occasion and to witness such sanctum. Sadhu Sannidhi. There is Subhashitam in Sanskrit. First about the place. Yatra prakritya rati uttamanam sajjananam sadhunam va. Prakritya, naturally. Rati, love, affection, dedication. Rati shabd cannot be translated very happily in English. At least not I can find any very happy translation for Rati. So in absence of any better substitute, I am using the word love or dedication. It all comes within the seema of word Rati. So yatra prakritya means naturally, automatically, spontaneously. This is the exact word. Spontaneously. Rati of Uttamanam, Sajjananam, Sadhunam. A place where spontaneous love happens at a place. Always remember that this is a very, very spiritual place. Uttama. Ayam sthanam. Yes. This is a very, very pavitra sthalam. Swabhaviki Krishna Marganuvrti. What do you mean? Swabhaviki Krishna Marganuvrti. If a blackbird loiters means Swabhaviki Gati, loiters at certain place, it proves that this is spiritually very elevated place. As soon as I entered in this vicinity, in the paridhi of ashrama, before seeing Swamiji or others, I told my driver, this is a different place. I am feeling some very different vibration. And I can boast myself, yes, it proved to be like that. When I entered and saw Swamiji's and the ashrama and the temple itself, Sannidhi, I was proved correct, yes, this is naturally very spiritually elevated place. It is Tirtha Sannidhi. Tirtha, where there is a water, the place itself becomes sanctified. So on this Sarovar Tate, on this bank of this Sarovar, this place is something very divine, very spiritual, and I am very pleased to be here presented on this day. I am thankful to Swamiji, and again, as our Swamiji was very finely describing the Avatar Varishta's life and teachings in perspective of religion, that religion is again not a very happy translation for dharma. No. Religion is a way of worship, and as our Swamiji told, dharma is not a way of worship. Way of worship could also be taken into the big body of dharma, but dharma is how you practice anything. Yad karoshi, yadasnasi, yad juhoshi, dadas, yad tapasyas, anything under the sun, which is thought or which is done, can be dharma and could be adharma both. You cannot specifically say any action to be dharma. Nothing. Every action could be dharma, every action could be adharma. It could be both. It depends how you are doing is not important. Why you are doing is important. A meat vendor could be a dharmika and tapasvi could be adharmika. We say, katham karosi, why you are doing is important. You can be giving discourses for mundane achievement, and you could be giving speech
for some very high, only to make upliftment of the Shrotas, or you could be doing as an instrument of Lord that I am doing this as your puja. And for that's enough. अच्छा ओके, स्वामी जी ने क्या कहा उसको मैं भाषा में कहना चाहूँगा। संसार में तुम क्या कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये महाराज की जो महाभारत की वही धर्म की परिभाषा है उसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ, बाल मनोरमा टीका कर रहा हूँ। किसी को मारना पुण्य भी है और किसी को मारना पाप भी है। सत्य बोलने से बढ़कर के पुण्य कोई नहीं है। महाभारत का सत्यान्नापरो धर्म, वेद का वचन है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक बालिक, आप यहां इसी स्थल पे कहीं बैठ के भजन कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, उधर से एक बालिका भागती हुई आ रही अपने कपड़े संभालते हुए और आकर के किसी झाड़ के बीच में छिप गई, वेजिटेशन उसके अंदर घुस गई। पीछे से 2-3 बालक आते दिखाई पड़ रहे हैं। उन बालकों का आकार, इंगिती और चेष्टा से पता चल रहा है कि इनके संकल्प अच्छे नहीं है। आप धार्मिक हैं, आप भजन कर रहे हैं, आपसे वो बालक आके पूछते हैं, इस तरह की एक बालिक, एक लड़की इस तरफ भाग के आई है, वो कहां छिपी है, आप बताओ। आप सब विद्वान विज्ञ लोग यहां बैठे हैं, आप बताइए कि आपको ये बताना, आपको मालूम है कि इनके इंटेंशन क्या है, इनके संकल्प क्या है। वो लड़की जो छिपी हुई है झाड़ के बीच में, वो घबरा रही है। बालक पूछते हैं, वो एक लड़की इधर आई है, कहां गई है। इस समय सत्य बोलना धर्म होगा कि अधर्म होगा, हम आप लोगों से पूछते हैं। इसलिए गहना कर्मणो गति, धर्म की गति बहुत दुरूह है। शास्त्र से धर्म बंधा नहीं है। धर्म तुम्हारी अंतःकरण की प्रवृत्ति है। पूज्य ठाकुर यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। धर्म की जो व्याख्या हमारे ठाकुर ने दी, उनके अनुगत स्वामी विवेकानंद जी ने दी, वो अद्भुत है। सत्य फैक्ट नहीं है, सत्य वो है जो तुम्हें मुक्त करे। स्वामी विवेकानंद जी ने जब पूज्य महाराज जी के निर्देश के अनुसार हमसे कहा कि हम लोग भारतवासी है तो हमारे ऊपर कुछ कर्तव्य है। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यासुते भारत भूमि भागी। इस धरती का गौरव तो देवता भी मानते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग, इन सबसे बढ़कर के कोई गति वाले जीव यहां उत्पन्न होते। स्वर्गास्पर्गास्पद हेतु यहां पर आहार निद्रा भय मैथुन के लिए जन्म नहीं हुआ। उसके लिए तो स्पाइरल कार्ड, इट इज वेरी वेल स्पाइरल कार्ड इज ब्रेन इज I will remember this right, and I think allow me to often quote it. Spinal cord is for spontaneous actions. हमको हिंदी बोले कहा गया है। तो
धर्म आखिर क्या है? धर्म की कोई परिभाषा आप कृपा करके नोट कर लें, धर्म की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है। जो भी परिभाषा या तो जनरल होगी और या अपन धारणा धर्मम इत्याहु। धर्म किसे कहते? जो तुम्हें धारण करे या जिसको तुम धारण करो, दोनों प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है। लेकिन धारण क्या करता है उसको कौन डिफाइन करेगा? परोपकाराय धर्म, परोपकारा धर्माय पापाय परिपीडनम। परोपकार क्या है? एक व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, क्या कहते हैं इसको, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन हुआ। यस, टॉन्सिलाइटिस के ऑपरेशन पर प्यास बहुत लगती है। एक आदमी प्यास से तड़प रहा है, पानी पानी मांग रहा, नर्सेज देती नहीं पानी, आती तो मुंह पे ऐसे करके और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चल के चले जाती। उसको गुस्सा आ रहा है, प्यास के मारे मर रहा है, मुझे पानी दो, पानी दो। और ऐसे में बहुत सुंदर ठंडा किया हुआ गंगा जल क्यों न हो, देना पाप है कि पुण्य है? क्या परोपकार है? प्यासे को पानी देना, भोजन, भूखे को भोजन देना, यह परोपकार है? किसी का आज अंतर्शोथ का ऑपरेशन हुआ है, भूख के मारे मर रहा है और उसके लिए बहुत शानदार इडली ऊपर से तुप्पा और चटनी डाल के प्रस्तुत करो, पुण्य है कि पाप है? बोलो। किसको हम परोपकार कहें, किसको सत्य कहें? धर्म की सब परिभाषाएं अधूरी। धर्म की ट्रेनिंग किसी सदगुरु के चरणों में बैठ के लेनी पड़ती है, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज धर्म। सामान्य लोगों के लिए दे दिया गया है परोपकारा पुण्याय पापाय परिपीडनम, लेकिन विशेष परिस्थिति में किसको परोपकार कहें? क्या परोपकार है? कभी किसी को मार देना ये परोपकार है, और कभी मरते हुए को बचा लेना ये पुण्य। बहुत कठिन गहना कर्म होगा। बहुत किसी आचार्य ने कहा जीवे दया, जीव के ऊपर दया करो। ठाकुर घबरा गए। वो ये बैजनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग है, वहां दर्शन करने के लिए गए, उनको अंतःकरण में भान हुआ जीवे दया। अरे जीव के ऊपर दया करने वाला तू कौन होता है? तेरी क्या सामर्थ्य जीव के ऊपर दया? तुझे मालूम है कि कौन सा कर्म दया है, कौन सा कर्म अदया है? कभी कभी भोजन कराना दया है, तो कभी कभी भोजन की प्लेट छीन लेना, डायबिटीज वाले के हाथ से मिठाई छीन लेना, मैं आप पर दया करूंगा? माय डियर, धर्म बहुत गंभीर वस्तु। धर्म धारण की जाती है। किससे धारण करोगे? किताब से? किताब से धर्म धारण हो सकता है? सामान्य व्यक्ति से नहीं हो सकता है। किसी संत महापुरुष के चरण में बैठ कर। और यही एक स्वामी विवेकानंद जी से एक बार प्रश्न किया गया था। उनकी 150वीं जन्मतिथि हम लोग लगभग 3 साल तक मना रहे हैं। 3 साल तक मनाएंगे हम लोग रोज ही। वैसे तो उनका नित्य ही जन्म हो रहा, जब हम उनका स्मरण करेंगे अंतःकरण में अपने सुधारने के लिए, तो वास्तविक जन्म हो रहा है। विवेकानंद जी हमारे सुधारने के लिए जन्म लिए, और अगर हम सुधर रहे हैं, सुधार के लिए उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो उनका जन्मतिथि हम वास्तव मना रहे हैं। और खाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने में कोई उसका एक्शन नहीं ला रहे हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा, तो हम उनका जन्मोत्सव नहीं मना रहे हैं, हम तो वैसे ही कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आनंद नहीं कर रहे। जन्म मनाने का तात्पर्य है, जन्मोत्सव मनाने के तात्पर्य है उनका हमारे अंतःकरण में प्रादुर्भाव होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, उनके आदर्शों का हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रूप से वी शुड ट्रांसलेट इट इनटू एक्शन। तब उनकी जन्मतिथि मनाई गई।
हम क्या कर तो भूल गए क्या हम कह रहे थे? लेट मी सी। हाँ, मैं क्या कह रहा था बोलो तो जरा। व्हाट आई वाज डिस्कसिंग? नो नो नो, व्हाट द पॉइंट वेयर आई टुक ए डाइवर्जन? Please, let us see how seriously they are listening to me. जीवन सेवा करने के लिए Dharma cannot be. It could be. You cannot define and you cannot get it from anywhere except under the holy lotus feet of your Sadguru. सतगुरु की चरण में बैठ करके ही धर्म की व्याख्या समझ में आती है। ये स्वामी विवेकानंद जी को आप लोगों को ध्यान है धर्म कब समझ में आया? बहुत बार ठाकुर इनको सुनाया, लेकिन ठाकुर के प्रति उनका विश्वास सर्वथा सुस्थिर कब हुआ? जब ठाकुर अंतिम लीला करने जा रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी के मन में आया, मन में संकल्प आया, ये राम हैं, ये कृष्ण हैं जो कहा करते थे मैं ही हूं। हमको अभी तक निश्चित नहीं हुआ कि साक्षात अवतार पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। हम लोग सब इतिहास वाले जो ठाकुर के चरणों में बैठ करके स्वामी जी के वचनों को सुनते हैं, उनकी जीवनी पढ़ते हैं। स्वामी जी ने लिखा है अपने अनुभव जो हमने पढ़े हैं कि शायद एटम बम फूटा होता उस कमरे में तो हमको उतना आश्चर्य नहीं होता जितना ठाकुर के इन वचनों से हुआ। जो राम था, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही राम कृष्ण थे। और तब विवेकानंद जी के एकदम निश्चित हो गया कि मैं आज परमात्मा की शरण में बैठ करके और अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। और तब वास्तव में स्वामी जी ठाकुर के यंत्र बन गए। ठाकुर तो प्रायः कहा करते थे, ओ माँ तुम्ही आमी जंत्रो तुम्ही यंत्र, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट एंड यू आर द इंजीनियर। ये हम अगर यंत्र बन सके, धर्म के बाधक हमारा अभिमान है, क्षुद्र अभिमान है। हम अर्जुन ने भगवान से अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छिन्न विवार्ष्णेय बलात् इव नियोजिता। हे कृष्ण, आदमी पाप क्यों करता है? माने धर्म का आचरण क्यों नहीं करता है? धर्म का उल्टा पाप। पाप क्यों करता है? धर्म का आचरण क्यों नहीं करता है? दोनों भुजा उठा करके स्वामी जी भी बोल रहे हैं और व्यास जी बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। क्यों? उसका रीजन क्या है? धर्म में बाधा क्या है? मैं आपके सामने उदाहरण देता हूं कि पाप कहां से उत्पन्न होता है। अभी टोकरी भर फल हमारे पास आए, हमारे पास फल बहुत आते, लोग बहुत प्यार करते हैं। एक टोकरी सेब हमारे पास आए, 700 और हम क्या करें तो सबको बोल दिया हमारे किसी व्यक्ति से कि सबको एक एक सेब बांट। तो पेटी में कोई छोटा सेब है, कोई बड़ा सेब है, कोई टेढ़ा सेब है, कुछ ऐसा दाग लगा सेब है, सबको एक एक करके वो व्यक्ति देता चला जा रहा है। 5वें 6ठे नंबर पर उसको दिखाई पड़ा उसकी पत्नी की बहन लाइन में लगी हुई है। अपनी पत्नी की बहन को देख करके पूरी टोकरी को उसने खोला। जो सबसे बड़ा वाला सेब था उसको अलग रख दिया, 6 लोगों को नॉर्मल बांट दिया। 7वें नंबर के पर्सन के लिए वो बड़ा वाला सेब दे करके अतीब प्रसन्नता की अनुभूति करता है। उसी में पीछे एक व्यक्ति दिखाई पड़ा
जिसने उनके संग पढ़ा ऐसा व्यवहार, अच्छा आओ बच्चों प्रसाद चाहिए, फिर पूरी डलिया देख, जो सबसे सड़ा हुआ सेब था उसको निकाल के रख दिया। जैसे ही वो व्यक्ति आया उसको सड़ा हुआ फल देख करके फिर बड़े आनंद की अनुभूति, खाओ जाके प्रसाद, बड़ा प्रसाद दे दिया ना। ये हंसने का तो विषय है। अब ये बताओ, गुरु की आज्ञा से गुरु का प्रसाद गुरु की संगत में बांटते समय आखिर पाप का उदय कैसे हुआ? किसने, गुरु ने पाप कराया या सेव ने पाप कराया या संगत ने पाप कराया? पाप और पुण्य हम करते हैं। प्रसाद बांटना धर्म भी है और इस तरह से प्रसाद बांटना अधर्म भी है। केन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुषा अनिच्छिन्नपि वासनया बलादि निवता, तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम मीन्स नॉट सेक्स, नो, काम मीन्स जिसके प्रति मोह है, क्रोध माने जिसके प्रति द्वेष है। तो राग द्वेष वियुक्तैस्तु, ये राग और द्वेष, काम और क्रोध समस्त पापों का कारण है। पतन का मार्ग ही यही है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा बुद्धिनाशात् प्रकृष्य। This is the series. काम ऐशा क्रोध ऐशा। काम राग से, द्वेष से क्रोध। राग द्वेष इनसे कैसे बचा जाए? राग द्वेष का मूल पहले कौन है? देखो, अपने को शरीर मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। जिस उपनिषद की चर्चा अभी पूज्य स्वामी जी कर रहे थे, उपनिषद का ज्ञान है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर से कुछ अलग हो। शरीर तुम्हारा कुछ समय के लिए है, ये भी तुम्हारा नहीं है, तुम कुछ और हो। वो क्या हो, उसकी चर्चा फिर अन्यत्र। अभी वर्तमान में अपने को परिच्छिन्न मानना, अपने आप में अहंकार लाना कि मैं अमुक हूं, यही समस्त पापों का मूल है। जो हमारा उससे काम, जो हमसे अलग उससे द्वेष। बाहर और जो धर्म है वो बहुत प्रेम सिखाते, सेवा सिखाते हैं। क्यों स्वामी जी को कहना पड़ा कि रिलीजन के मामले में भारत को मत सिखाओ? हमारे यहाँ भाई बंद वाला काम नहीं है। अयम मम एव, ये मैं ही हूं। ये वासुदेवा सर्व अयम निजा परो वेत्ति गणना लघुचेत साम, ये बहुत छोटे दिमाग वालों के लिए है कि मैं, ये मेरा भाई है ऐसा, ये उसका भाई है, उसकी बहन ऐसा। हमारे यहाँ नहीं। अयम निजा परो वेत्ति गणना लघुचेत उदार चरितानंद वसुदेव कुटुंबकम, हमारा शरीर कुटुंब जैसा है, उसी प्रकार ये देखा है। तो ये कैसे प्राप्त होगा माई डियर? इसके प्राप्ति का उपाय क्या है? ठाकुर के शब्दों में इसको हम समझने की कोशिश करें, जिसको पूज्य स्वामी जी ने प्रैक्टिकल करके दुनिया को दिखाया। भगवान ने स्वयं गीता में इसका संकेत किया है चरम भाग में। अपिचेत सुदुराचारो, ये पाप से बचने की विधि। यद करोषि यदस्नासी यद जुहोषि ददासी, यद की व्याख्या इस परिप्रेक्ष्य में कृपया देखने की कोशिश करें। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी प्रणाश को प्राप्त नहीं होता है, कभी पतित नहीं होता है।
इसलिए भगवान ने कहा कि चाहे कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, पापी से पाप, आखिर पाप का मूल हम लोगों ने देखा कहां है? अपना अभिमान है। मैं पाप करता हूं, इस मैं की निवृत्ति कैसे हो? तो ये ठाकुर ने हमको बताया। अब जे सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाग, भजनम नाम सेवनाम, भज सेवायाम धातु, ये तुमको बालिका हमारे पड़ोस वाली बता देंगी। भज सेवायाम धातु, भजनम सेवनाम। परिपूर्ण प्रकार से, सब प्रकार से अपने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा देना या भगवान के लिए समर्पण कर देना, यही सेवा है। जिसने अपना अभिमान भगवान को दे दिया, उसका मन कहीं अलग जाएगा ही नहीं। जिसने अपना मन दे दिया बुद्धि के साथ, तो उसकी इंद्रियां कहां गलत मार्ग पे जाएंगी? जब इंद्रियां गलत मार्ग में नहीं जाएंगी तो इंद्रियाणि हयान्याहुः मना प्रग्रह में वचा बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। हमारा रथ अपने आप धर्म के मार्ग पर चलने लगेगा, कहीं इधर उधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। अगर श्री कृष्ण को, ये जो अभी रथ की हमारे चर्चा चल रही थी और हम बड़े प्रसन्न हुए, पूरी स्वामी जी ने जो हमको इसके विषय में बताया, ये एक रथ बनाने वाले हमारे आए हैं, भगवान शंकर जी के वाहन। शंकर जी का वाहन है? नहीं, उसका नाम वही तो है, वसवराज। तो अगर वसवराज रथ नहीं बनाएगा तो और कौन बनाएगा? शिव जी का वाहन ही बनाएगा। तो इसका नाम ही वही है। शिव जी का वाहन है तो शिव जी के लिए रथ बनाएगा ही। शिव माने कृष्णा जो कल्याण करता है, उसी का नाम शिव है। कृष्ण शिव ही तो है, राम शिव ही तो है। तो ये बताया कि भाव कि महाराज ये लकड़ी जो आप दे रहे हो, ये लकड़ी रथ बनने के योग्य नहीं है। हम बहुत प्रसन्न हुए सुनकर के, वाह, आखिर सोने से ही या चांदी से वर्क बनाया जा सकता है, तांबे का कोई वर्क मीन्स what is it? No, that very small which applies on the no work means no carving dear, the very thin which is applied on the sweets, on everything. Yes, but what is the name of it? Yes. Foil. No, foil is again a very thick. Silver foil. Foil is very thick, my dear. Work is not that thick. It will fly like this. I don't think there is any. जो मिठाई के ऊपर लगाते हैं ना बेटा, that's again very wrong English. Then whatever it is, now you got my point. What is work? It is very, you cannot, foil you can make of tin, aluminium, but work you cannot make of tin or aluminium. Work is very thin. It is in decimillimeters or whatever. मिठाई के ऊपर लगाते ना चमकने के लिए, और चिपक जाता है, उंगली में छूत ऐसे। Yes, what I was saying in Kannada, I will say you will start laughing if I look probably that day. Chuneri, chuneri, if he says. Chinari, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Not foil. Okay, try to find out. Google search करो। हम अपना अभिमान, यही हमारे पतन का कारण है। ये अपना अभिमान कैसे दें? बुल्ले शाह ने, बुल्ले शाह पंजाब के बहुत बड़े संत हुए। बुल्ले शाह ने अपने गुरु से पूछा कि भगवान की प्राप्ति का उपाय बताओ। ये धर्म की व्याख्या करो महाराज।
रामो विग्रहवान धर्म, इसलिए आचरण धर्म, इसको सर्कमस्टांस में कह रहा हूं। प्रभु से, भगवान से मिलने का मार्ग बताओ। तो उनके गुरु ने जो भगवान की प्राप्ति का उपाय बताया है, उससे सरल और उससे सटीक उपाय हमको अभी और कोई दूसरा नहीं मिला है। आप लोग मिले तो बताना। उनके गुरुजी ये सब्जी बोने वाली जाति के थे। सब्जी बोने वाली क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो सब्जी पैदा करते हैं, चलो कोई भी, नो 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 नो, वो जो सब्जी पैदा करते हैं, farmer, no, specifically they grow vegetable only. That is specific. In other India they called kachi. So they only grow vegetable only. अच्छा, they are very specific, the kachi. तो वो लोग, तो वो प्याज का बीज लगाकर, जैसे धान को इधर से लगाते वैसे प्याज को इधर से उखाड़ करके लगा रहे थे। तो वो कहते ओए बोलिया, ये पंजाबी में बोलिया माने बड़े प्रेम वाला, ओ माय चाइल्ड, माय डियर, ओ बोलिया, ओ रबदा की पौना ले, भगवान को प्राप्त करना कोई काम है? माने इतना आसान तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। इथों पुटके और इथे लाना, यहां से उखाड़ो और यहां लगा दो। अच्छा बताओ, हमारे बहुत प्यारे डीएफओ साहब आए थे, उनकी पत्नी रजत प्रभा, भूल गया मैंने, तो वो आई। इसके शादी के पहले उसका सरनेम एक्स था और डीएफओ से, उस समय डीएफओ नहीं थे, उस समय शायद और अधिकारी रहे होंगे, रेंजर या और कुछ रहे होंगे। उनके संग विवाह करने के बाद वो सरनेम अपने आप हट गया और हमारे डीएफओ का सरनेम उसके संग चिपक गया। मुझे ये पूछना है कि क्या अपने माता पिता को इन्होंने तलाक दिया? क्या उनसे लड़ाई की, उनको धक्का मारा? वो सब कुछ नहीं किया। केवल डीएफओ के साथ विवाह कर लेने का मतलब हो गया, कल तक जो अपने थे वो पराये हो गए। अब हमारे यहाँ उसको मायका कहते, मदर्स हाउस को मायका कहते। मायका माने माया का, वो माया का हो गया और ये हमारे पतिदेव हो गए। पाति रक्षति पति स्वामी ईश्वर इत्यर्थ। माय डियर, संसार को छोड़ करके कोई चला गया है, कम से कम मुझे तो नहीं मालूम, मुझे मालूम अभी हम में काम भी है, हम में क्रोध भी है, लोभ है, मोह है, ये सब दोष रहते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना? इथों पुटके इत्थे लौड़ा। यहां से अपने मन को उठा करके, अपनी बुद्धि को उठा के प्रभु के चरणों में लगा देना, बस। अच्छा माय डियर, अब आपने मन अपना भगवान को दे दिया, बुद्धि अब भगवान को दे दी, तब अब हमारी डीएफओ की पत्नी से मैं पूछता हूं, तो तुम लोग ननद को क्या बोलते हो? जो हस्बैंड की सिस्टर होती है उसको नादिनी। नादिनी जिसका कोई लेना देना था पहले, लेकिन अब नादिनी मेरी नादिनी हो गई। डीएफओ के मदर मेरी मदर हो गई। डीएफओ का ब्रदर मेरा देवर या जेठ हो गया। ये संबंध कैसे जुड़ गए? केवल एक डीएफओ के साथ संबंध का मतलब हो गया, जितने डीएफओ के हैं वो सबके साथ हमारे संबंधी हो गए। अगर हम एक कृष्ण के हो गए, अगर एक राम के हो गए, अगर एक सदगुरु के हो गए, तो सदगुरु के जितने हैं वो किसके हुए? वो मेरे हुए। तो संसार में पराया कौन रहेगा? किससे राग करोगे, किससे द्वेष करोगे? भगवान कहते हैं ये सब मेरी सृष्टि है। अरे मनुष्यों को नहीं, ये कीट पतंग, इन सब के प्रति दया करुणा तुमको करनी नहीं होगी। अगर तुम डेडिकेटेड वाइफ हो तो तुमको इनके प्रति कुछ करने में खुशी होगी। अगर माँ, हमारे पति की माँ अगर पानी मांग रही है
और पति चाय मांग रहा है तो पति को चाय न देंगे, पहले माँ को देंगे, पति प्रसन्न हो जाएगा, मुझे छोड़ करके मेरी माँ की सेवा की। इसी प्रकार अगर भगवान की सेवा छोड़ करके, जो हमारे विवेकानंद जी महाराज ने हम लोगों को सिखाई, जो ठाकुर ने हमको सिखाया, अगर हम भगवान को छोड़ करके, अगर भगवान का कोई बेटा या बेटी या माँ या भाई कोई अगर किसी प्रकार हमारी सेवा चाहता है, अगर हम भगवान की सेवा छोड़ के उसकी सेवा करेंगे तो भगवान को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? ये धर्म है। राग द्वेष से बचने का सर्वोत्तम उपाय है भगवत शरणागत हो जाओ। धर्म के आचरण का सबसे सरल, क्योंकि अधर्म हम करते हैं, धर्म तो हमारी गति है, धर्म हमारा स्वभाव है। हम अधार्मिक होकर के हम अयम निजा परो वेति ये समझ करके मैं मेरी तू तेरी के कारण राग द्वेष करते हैं। राग और द्वेष के कारण ही पाप पुण्य। इससे मुक्ति का एक उपाय है जो हमारे ठाकुर ने कहा, तुम यंत्र हो जाओ, माँ यंत्री हो जाओ। ओ माँ आमी यंत्रो तुम यंत्री। तो जो मेरे से कराना चाहे माँ वो तू करा, जो भी मैं कर रहा हूं यद करो यदस्न। तुम क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों कर रहे हो? भोजन करना पूजा हो जाएगी, स्नान करना पूजा हो जाएगी। अरे माय डियर, सोना भी पूजा हो जाएगी, टॉयलेट जाना भी पूजा है कि नहीं? बोलो, धर्म के प्रमाण। ठाकुर की सेवा के लिए शरीर को स्वस्थ स्वच्छ रखना है, इसलिए टॉयलेट जाना भी धर्म। कहां धर्म को किताबों में बांधोगे? एवरी एक्शन विल बी योर धर्म। यही धारणा धर्म। तुम क्या कर रहे हो ये तुम्हारा धर्म है। हम ठाकुर के लिए कर रहे हैं। ठाकुर माने ये सर्वम खलुदम वासुदेवा सर्वम इति, जो संसार में सबके लिए कल्याण में है वही आचरण करना, वही धर्म है। इससे भिन्न करना वही अधर्म है। ये सामान्य परिभाषा आपके सामने आज ठाकुर के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर और पूज्य स्वामी जी महाराज के 150वीं जन्म जयंती जो हम लोग 3 वर्ष तक मनाने जा रहे हैं, और पूज्य महाराज का, स्वामी जी महाराज का ऐसा दिव्य आनंदमय गंगा के प्रवाह सम सुशीतल और कल्याणमय प्रवचन उसकी बाल मनोरमा टीका के रूप में अर्पित कर अपने वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम।